Once again, very good morning to everyone. And as you could see, the red line on the screen, we have to start from here today. The second chapter is going on, The Adventures of Toto. Until this paragraph, we have explained for the recap of this chapter. I would like to tell you that we are going to know a story in which we have to study the adventures and activities of a baby monkey. एक बंदर के बच्चे की एक्टिविटीज को पढ़ना है, स्पेशली ही इज द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस चैप्टर। जो मुख्य कैरेक्टर है वो वही है, बेबी ऑफ मंकी। ओके, अब एक फैमिली रहती है। देयर वॉज अ फैमिली इन विच ग्रैंड फादर वॉज वेरी फंड ऑफ हैविंग एनिमल्स। जैसा कि मैं कल बताया था इन द प्रीवियस सेशन ऑफ वीडियो कि दादाजी बड़े शौकीन होते हैं जानवरों के। Once he went for visiting in the city and he met a Tonga driver. He saw a baby monkey there who was peeping out of bag frequently, and the grandfather was tempted by the activities of that baby monkey, so he decided to add more number of animals in his private zoo. Especially, you must know that grandfather had a private zoo. उनके पास एक उनका खुद का व्यक्तिगत निजी चिड़ियाघर भी था। सो ही wants to add more animals in the private zoo. What was the problem was that the grandmother of the family doesn't like animals, so he decided to keep it as secrecy. Okay, that she'll not be able to know, she'll never know that I have brought another animal, that is baby monkey. Okay, now अब तक क्या था कि बेबी मंकी को वो लोग घर लाए। दे टुक द बेबी मंकी एट होम एंड दे केप्ट इन अ सीक्रेट प्लेस, बट द बेबी मंकी वाज सो न्यूशंस एंड सो मिस्chievous. ओके, बड़ा बदमाश था, बड़ा शरारती था। वेयर ही वाज केप्ट, he does nuisance there. He broke, you know, he broke the door, he broke the furniture, he tore the pages, ornamental pages, he tore the blazer of the grandson। बहुत सारी चीजें थी जिसको उसने नुकसान कर दिया। ठीक है, उसके बाद उसको लोग एक बैग में पैक किए। बैग पैक करके दादाजी सहारनपुर जाते हैं अपनी पेंशन लेने। आई मीन ग्रैंडफादर ऑफ द फैमिली वेंट टू सहारनपुर फॉर कलेक्टिंग हिज पेंशन। ओके, पेंशन का मतलब क्या होता है? इट्स अमाउंट ऑफ मनी। ओके, इट्स एन अमाउंट ऑफ मनी which is deducted from the salary and it is provided after the retirement of an employee। ये होती है पेंशन। तो वो पेंशन कलेक्ट करने जाते हैं, तो उन्होंने डिसाइड किया कि मैं टोटो को साथ लेकर जाऊंगा। एंड आई ग्रैंडसन कुड नॉट company accompany his grandfather, so Toto was alone with the grandfather went to Saharanpur। when he went there at the railway platform, जब वो प्लेटफार्म पर पहुंचे और उन्होंने देखा कि बैग पूरी तरह बंद है। अब टोटो क्या कर रहा है, जो मंकी है उस बैग में ही बैठे बैठे रोलिंग कर रहा है। रोलिंग का मतलब लुढ़क रहा है, यहाँ से वहाँ से यहाँ जंप कर रहा है। एंड इट काजेज अ लॉट ऑफ क्राउड अराउंड द टोटो एंड ग्रैंडफादर। जैसा कि ग्रैंडफादर उस बैग को लिए रहते हैं, उस बैग में टोटो मंकी होता है, और वो मंकी जब रेलवे स्टेशन पे पूरी तरह से लुढ़कने लगता है, एक्टिविटीज करने लगता है, so people were attracted towards the activity of that monkey, so they gathered themselves around the monkey। वहां पे एक भीड़ इकट्ठा हो जाती है। फिर आगे क्या होता है, let us know next। Toto remained in the bag as far as, हाँ, ड्यू टू नेटवर्क कंजेशन इट मे बी, बट यू नो बी कंटिन्यू, हो सकता है आवाज फिर सही हो जाए। Now, Toto remained in the bag as far as Saharanpur. But while grandfather was producing his ticket at the railway turnstile, Toto suddenly poked his head out of the bag and gave the ticket collector a wide grin.
ओके, अब अब तक तो क्या था कि वेरी गुड, या टोटो रिमांड इन द बैग एज फार एज सहारनपुर, सहारनपुर तक टोटो बैग में ही था, बट वाइल ग्रैंडफादर वाज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट एट द रेलवे turnstile, when grandfather दादाजी was collecting ticket, okay, at the railway turnstile, टोटो suddenly poked his head out of the bag, suddenly टोटो जो है वो बैग के बाहर आ गया, ठीक है। Now it was a great trouble for the grandfather outside at the railway station, because Toto poked his head out of the bag. And you can understand, when we are carrying an animal along with us anywhere outside out station, and he is making activities, nuisance at the public place, so it would be a great trouble for the owner of the animal. अब क्या होता है, वो क्या करता है कि जो टिकट कलेक्टर होता है, टिकट कलेक्टर, उसको एक वाइट ग्रीन, ग्रीन का मतलब होता है चिढ़ाना, ठीक है, यहाँ पे वाइट ग्रीन का मतलब चिढ़ाने से है। Finally, the poor man was taken aback. The poor man was taken aback, but with great presence of mind and much to grandfather's annoyance, he said, "Sir, you have a dog with you. You will have to pay for it accordingly." Okay. अब वो जो मंकी है वो अपने सिर को थोड़ा सा बाहर बैग से निकालता है, तो कलेक्टर को, आई मीन टिकट कलेक्टर को लगता है, इट सीम्स टू हिम दैट द ग्रैंडफादर वाज हैविंग अ डॉग अलोंग विद हिम, उनके साथ साथ एक कुत्ता होता है, ठीक है। तो वो कहता है, दादाजी, यू विल हैव टू पे फॉर इट, यू आर कैरिंग अ डॉग विद यू, आप एक कुत्ता भी अपने साथ लिए हुए हैं, तो इसका भी चार्ज लगना ही लगना है। इन वैन डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग, अब दादाजी ने बंदर को बाहर निकाल लिया, टू शो दैट दिस इज नॉट अ डॉग, दिस इज अ बेबी मंकी, ये कुत्ता नहीं है बट ऑल्सो इट इज अ बेबी मंकी। इन वैन डिड ही ट्राई टू प्रूव दैट मंकी डिड नॉट क्वालिटी एज अ डॉग और इवन एज अ क्वाड रॉब्ड, टोटो वॉज क्लासिफाइड एज अ डॉग बाय द टिकट कलेक्टर। अब दादाजी ने ऐसा क्यों किया, वाई डिड ही टेक आउट द मंकी आउट ऑफ द बैग, दादाजी ने बैग से बाहर क्यों निकाला मंकी को, दिस इज द क्वेश्चन। इट मीन्स द ग्रैंडफादर वांट्स टू शो दैट दिस इज नॉट अ डॉग बट ऑल्सो दिस इज अ मंकी, एंड टोटो वॉज क्लासिफाइड बाय द टिकट कलेक्टर एज द डॉग, टिकट कलेक्टर जो था वो टोटो को एज डॉग आइडेंटिफाई किया था, इसलिए उन्होंने बाहर निकाल दिया कि लो देख लो, ये कुत्ता नहीं है बल्कि ये क्या है, ये एक बंदर है, बेबी मंकी है। नाउ and 3 rupees was the sum handed over his fare, अब उसके लिए 3 रुपीज फेयर के तौर पे 3 रुपीज दिया जाता है। द ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज ओन बैग, okay, took from his pocket out paid tar twice and said, what must I pay for this, since you charge for all animals? What is the funniest thing with the grandfather? Grandfather was having tortoise in his pocket. As the ticket collector charged for the baby monkey 3 rupees, he took out a tortoise out of his pocket and said, what must I pay for this? तो इसके लिए, इस मेढक के लिए क्या पे कर सकता हूं मैं, इसका भी चार्ज लगना चाहिए। The ticket collector looked closely at the tortoise. अब टिकट कलेक्टर जो है वो मेढक की तरफ बहुत ही क्लोज होकर देख रहा है। प्रोडेड इट विद हिज फिंगर, 4 फिंगर, वो अपनी अंगुलियों से, 4 अंगुलियों से ऐसे छुआ। गेव ग्रैंडफादर अ प्लीज्ड एंड ट्रियम्फेंट लुक,
और बड़ा मुस्कुरा करके और बड़ी खुश होकर के दादाजी की तरफ देखा। नो चार्ज, इट इज नॉट अ डॉग। तो कहता है कि नो चार्ज, आई कांट। The ticket collector looked closely at the tortoise and prodded it with his forefinger, gave grandfather a pleased and triumphant look, and said, no charge. It is not a dog. Okay. When he identifies the tortoise that this is not a dog, he replied negatively that no charge. I'll pay no charge for this tortoise. It is not a dog. ये एक कुत्ता नहीं है, इसलिए इसका कोई चार्ज नहीं होता है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। दिस इज द नेक्स्ट पेज। When Toto was finally, what happens next? Let us know. When Toto was finally accepted by the grandmother, he was given a comfortable home in the stable, where he had for a companion for family donkey. Is this third page? This is eighth page. Yes, this is ninth. When Toto was finally accepted by the grandmother, he was given a comfortable home in the stable. जब दादी माँ ने बेबी मंकी को, आई मीन टोटो को पूरी तरह एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, तो टोटो को एक कंफर्टेबल होम इन द स्टेबल दिया गया। स्टेबल का मतलब वेयर ही हैड फॉर अ कंपेनियन द फैमिली डंकी, नाना, जहाँ पे नाना नाम का डंकी रहता था। ठीक है, जब बंदर को दादी माँ ने एक्सेप्ट कर लिया कि चलो ठीक है ये हमारे परिवार में रहेगा, तो उसको डंकी के स्टेबल में रखा गया, जिस डंकी का नाम क्या था? नाना था। ऑन टोटोज फर्स्ट on Toto's first night in the stable. अब it was the time of first night, okay, of Toto in the stable. पहली रात थी स्टेबल में टोटो की। Grandfather paid him a visit to see if he was comfortable. Grandfather was visiting him whether he is comfortable in the stable or not, कि ये रात को अच्छे से यहाँ पे रहता है कि नहीं, आराम है इसको कि नहीं, इसके लिए दादाजी देख रहे थे, उसकी मतलब निगरानी कर रहे थे। To his surprise, he found Nana without apparent cause pulling at her halter and trying to keep her head as far as possible from a bundle of hay. Okay, I mean, the monkey was creating nuisance there. He was keeping her head as far as possible from a bundle of hay. अब वो क्या कर रहा है कि जो डंकी है उसके हेड को पुल कर रहा है। ठीक है, डंकी नाना के हेड को पुल कर रहा है एंड ट्राइंग टू कीप हर हेड एज फार एज, दूर कर रहा है, पॉसिबल फ्रॉम अ बंडल ऑफ हे, मीन्स उसको खाने ही नहीं दे रहा है। ठीक है, ही इज सो मिस्चिफियस, उसके मुंह को पकड़ रहा है, हेड को पकड़ रहा है, और बंडल ऑफ हे का मतलब होता है सूखी घास। ठीक है, घास से उसके सिर को दूर कर रहा है कि ये खा ही ना पाए, तो वहां भी ये बदमाशी कर रहा है। नाउ ग्रैंड फादर गेव नाना अ स्लैप अक्रॉस हर हांचेस। ठीक है, अब नाना के हांचेस के पास एक स्लैप देते हैं, एक थप्पड़, साइड का मतलब ऐसे मारते हैं उसको। एंड सी जर्क्ड बैक, और वो बैक हो जाता है। ड्रैगिंग टोटो विद हर, he had fastened on to her long ears with his sharp little teeth. ठीक है, अब वो क्या करते हैं, he had fastened, वो बड़ी तेजी से, on her long ears, उसके लंबे कानों पर जो है दांत से काटने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, बंदरवा जो है। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स, टोटो और नाना दोनों
कभी भी अच्छे फ्रेंड्स नहीं बने, क्योंकि दोनों की बनती नहीं थी एक दूसरे के साथ। ठीक है। बंदर उस पे कान पे काट ले रहा है, तो कभी उसके हेड को जो है इधर खींच रहा है कि वो खा ही ना पाए। ये सारा कुछ उसके साथ चल रहा है। अ ग्रेट A great treat for Toto during cold winter evening was the large bowl of warm water given him by grand uh, mother for his bath. अब क्या हुआ? बाउल मीन्स कटोरा होता है, ठीक है। एक कटोरे में जो कि गर्म पानी था, दिया गया मंकी को, आई मीन बेबी मंकी को, उसको नहाने के लिए। ठीक है। शाम का समय था, ठंडी का समय था, और दादी माँ ने गर्म पानी कटोरे में रख के बंदर को दिया ताकि वो नहा ले। He would cunningly test the temperature with his hand. मंकी जो था, बंदर जो था, वो बहुत ही धूर्तता से, कनिंगली का मतलब होता है क्लेवरली, बड़ी चालाकी से, ही टेस्ट द टेम्परेचर, वो टेम्परेचर को मेजर कर रहा था, वेदर इट इज हॉट, एडोरेबल, सॉरी, बियरेबल आर नॉट, ये सहन सहन करने के योग्य है कि नहीं, हाथ से वो टेस्ट कर रहा था। देन ग्रेजुअली स्टेप इन टू द बाथ, फिर धीरे से, ग्रेजुअली का मतलब वेरी स्लोली, ही वॉज स्टेपिंग इन टू द बाथ, वो धीरे धीरे पानी में घुसा। फर्स्ट वन फुट, पहला पैर धीरे से डाला, देन द अदर, फिर दूसरा, एज ही हैड सीन मी डूइंग, जैसा कि उसने मुझे करते हुए देखा था। अंटिल ही वॉज इन टू द वाटर अप टू हिज नेक, अब वो अपने आप को, नेक का मतलब गर्दन तक, पानी में डुबाए रखा था। ओके, ही वॉज शंकिंग द ट्रंक पार्ट ऑफ हिज बॉडी यू नो अंटिल द नेक। ठीक है। अब अगले पेज पर चलते हैं। बंदर नहा रहा है, ठीक है। बड़े मजेदार स्टोरी है ये। बंदर नहा रहा है पानी में, और बड़ी क्लेवरली आराम से टेस्ट करके टेम्परेचर जा रहा है कि कहीं ना मैं जल ना जाऊं। ठीक है। वंस कंफर्टेबल, एक बार तो बड़े आसानी से उसने नहाया। ही वुड टेक द सोप इन हिज हैंड्स आर फीट एंड रब हिमसेल्फ ऑल ओवर। वाओ, द मंकी इज सो सिंसियर, ही इज रबिंग सोप्स एज वेल, साबुन भी लगा रहा है अपने हाथ पर, पैरों पर, तो बहुत ही क्लेवर है। When the water became cold, जब पानी ठंडा हो गया, he would get out and run as quickly as he could to the kitchen fire in order to dry himself. और जैसे ही पानी ठंडा हो गया, he was feeling cold, जैसे ही वो ठंडा फील करने लगा, he ran from there to the kitchen and dry himself, और अपने आप को सुखाने की कोशिश करने लगा। मतलब ठंड लग रही थी तो गर्मी की तरफ भाग रहा है, गर्मी हो रही है तो ठंड की तरफ। आई मीन ही इज सो सिंसियर एंड क्लेवर एनिमल। If anyone laughed at him during his performance, Toto's feeling would be hurt and he would refuse to go on with his bath. Okay, I mean, if anybody was laughing seeing the performance of that baby monkey, he was hurting himself, he felt hurting himself, उसको अजीब लग रहा था। he was reacting, वो रिएक्ट करता था, उसको लगता था कि मेरी परफॉर्मेंस पे ये लोग हंस रहे हैं। सो ही रिफ्यूज टू हैव अ बाथ नेक्स्ट टाइम, फिर वो अगले समय जो है नहाने के लिए मना करता था, आई मीन वो नहीं जाना चाहता था। वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव, एक दिन तो क्या हुआ कि बॉइलिंग वाटर था, आई मीन उबलता हुआ पानी, और उसमें वो कूद गया अपने आप को जिंदा ही। ठीक है, आई मीन अपने आप को जिंदा कुदा दिया उसमें, मीन्स ही वाज अबाउट टू डाई, वो मरने वाला था। ठीक है। एक दिन क्या हुआ, a large kitchen kettle had been left on the fire to boil for tea, and Toto, finding himself with nothing better to do, decided to remove the lid, finding the water just warm enough for a bath, and he got in with his head sticking out from the open kettle. अब एक दिन की बात क्या है कि चाय बनाने के लिए किचन में एक केटली रखी थी, जो कि जिसका पानी पूरी तरह खौल रहा था, उबल रहा था। टोटो ने क्या किया कि नहाने के लिए उसके ढक्कन को हटाया और सिर को अपने उसमें डाल दिया। ठीक है, ओपन किया और सिर को अपने उसमें डाल दिया, आई मीन नहाने के लिए। दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर अ वाइल अंटिल द वाटर बिगेन टू बॉयल। टोटो देन राइज्ड हिमसेल्फ अ लिटिल, बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड सेट डाउन अगेन, फिर वो अपने आप को उसमें ही रहने दिया, सेटल किया। आई मीन टू से दैट the monkey kept himself in the kettle, and it was boiling.
केतली में जो पानी रखा था वो बॉयल हो रहा था. सो द टेम्परेचर वॉज इंक्रीजिंग ग्रेजुअली, धीरे धीरे टेम्परेचर उसका बढ़ ही रहा था. इसको नहीं पता था कि इसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, बिकॉज ही वॉज एन एनिमल, वो एक जानवर था. ओके फिर उसमें वो बैठ गया. उसके बाद क्या हुआ, टोटो देन राइज्ड हिमसेल्फ बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड सैट डाउन अगेन. फिर उसी में बैठ गया. ही कंटिन्यूड हॉपिंग अप एंड डाउन फॉर सम टाइम until grandmother arrived and hauled him half boiled out of the केतली. ठीक है, आई मीन हाफ बॉइल्ड का मतलब अभी वो थोड़ा सा ही गर्म है, गर्म हुआ था तब तक दादी माँ पहुंच गई और बंदर को वहां से निकाल लेती हैं. अगर इफ ग्रैंड मदर वुड नॉट अराइव देयर, he would not haul him to take out, what would happen with monkey? This is the question. The monkey would be burning himself in the kettle because the temperature was gradually increasing. It was on the fire. Okay, this is the answer. अगर वो कंटिन्यूस में बना रहता तो धीरे धीरे टेम्परेचर वो होता और वो उसी में उबल जाता. लेकिन दादी माँ आई, चिल्लाने लगी, फिर उसको उबलने से बचा दी. फिलहाल के लिए इतना ही हम पढ़ेंगे. नेक्स्ट अगले दिन पढ़ेंगे. And this is the information for all the students to join the online classes nowadays, because your attendance is being recorded, okay, in the record of CBSC, and we have to send 75% of the strength and attendance of each student. So it is better, otherwise you will not be able to participate first term and second term examination, because your examination, the session has been divided into two parts, term first and term second. Okay, so it has better or very mandatory and compulsory to give 75% of the attendance. So inform your classmates and read the notice in the group forwarded in the group yesterday and avail the opportunity. That's it. Keep learning.